we discussed sampling and sampling related concept. In the process, we discussed population, sampling, parameter, statistics, and most importantly, types of sampling as probability and non-probability sampling. And when we were discussing these related concept of sampling, we decided that different types of sampling techniques, whether it comes in the probability category or non-probability category, we shall discuss individually. So in this series, when we were discussing sampling, today we shall be discussing, you can see, simple random sampling. Firstly, we shall discuss all the sampling, that is probability sampling, and the sampling, random sampling, is one of the probability sampling which we shall be discussing today. And after this simple random sampling, we shall be discussing other sampling techniques, whether it is probability and non-probability. As we all know that before the start of any lecture, we outline the lecture, that what is the scope of the present lecture. So let us see the scope of the lecture. That is the scope of the lecture, that is simple random sampling. So let us see. So you can see we shall be talking on simple random sampling. Firstly, we have tried to understand what is simple random sampling. You can see, and whenever we talk the simple random sampling, you can say the basic of this sampling technique is that every individual element has equal chance of being selected in the sample. So population का हर member select हो सकता है, इसका equal chance है. Then we shall talk on the merits of simple random sampling. Again merit, you can see, and now at the end, limitations of the simple random sampling. So this is the scope of the lecture. Now let us start and discuss. So the basic of simple random sampling, if you have to understand, is that every individual unit, every individual member of the population has equal chance of being selected. This is the basic. So let us see and try to understand the simple random sampling. And if you will concentrate, you will find no difficulty in understanding the concept. In simple random sampling technique, from a finite population, sample is selected in a way that every unit of the population gets equal chance of being selected. मतलब कि पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल मेंबर को सैंपल में सेलेक्ट होने का चांस बराबर होता है. एंड सो फार एज द टेक्निक्स ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज कंसर्न, यूजुअली देयर आर टू टेक्निक्स. वन इज lottery method, and you must be knowing, you must be familiar with the concept that is lottery method. और दूसरा है random table method, you can say. So we generally utilize under the simple random sampling either the lottery method or the random टेबल मेथड. ये ध्यान रखना. और जैसे ही हम लॉटरी की बात करते हैं, हम समझ रहे हैं कि तुम लोगों को बहुत सारी बातें वैसे भी समझ में आ गई होगी कि निकालते हैं, सबको इक्वल चांस है, सब जितने भी आदमी को सैंपल में शामिल करना है उन सारे लोगों का लिस्ट बना के. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस टेक्निक आइदर लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर टेबल. रैंडम नंबर टेबल, यहां लिख दूं नंबर, रैंडम नंबर टेबल. समझ रहे हैं हम लोग कैसे, क्या मतलब है उसका.
मतलब या सिंपल रैंडम सैंपलिंग में या तो हम लॉटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं या फिर नंबर टेबल का, रैंडम नंबर टेबल का. So in this technique, either lottery method or random number table is used to pick the units to include in the sample. Clear है? The main attribute of this sampling method is that every unit has the same probability of being chosen. और इससे ये भी क्लियर हो जा रहा है कि इसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है जितने भी लोगों को हमने शामिल किया. दिस सैंपलिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ चांसेस. मेथड ऑफ चांसेस इसको याद रखना चाहिए इसलिए कि कभी कभी जीके में हो सकता है नेट वगैरह के एग्जाम में ही पूछ दे. सो दिस सैंपलिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ चांसेस. In fact, it is a basic type of sampling and can be component of other more complex sampling methods. आगे हम लोग देखेंगे जब बहुत सारे complex फॉर्म जो है, तो सब नाम ही है सिंपल, तो बाकी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है उसका भी ये पार्ट हो जाता है. इसीलिए कह रहा है कि in fact it is a basic type of sampling and can be component of other more complex sampling methods. मतलब दूसरे जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं उसका भी ये पार्ट हो जाएगा. कैसे, आगे हम लोग समझेंगे. ए सिंपल रैंडम सैंपल इज ए सबसेट ऑफ ए स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इन विच एवरी मेंबर ऑफ द रिलेटेड सबसेट हैज एन इक्वल चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. मतलब यदि हम इसके डिफिनीशंस की बात करें तो एक लाइन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो सैंपलिंग टेक्निक जिसमें एवरी इंडिविजुअल मेंबर के सिलेक्शन का इक्वल चांस है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग. इन फैक्ट ए सिंपल रैंडम सैंपल इज एन अनबायस्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. चूंकि सबका चांस इक्वल है तो ऑब्वियस है कि अनबायस्ड है. फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट of all the units is prepared. Size of the sample is decided and by using any method, whether it is lottery or random number table, units are selected. मतलब कैसे हम लोग करते हैं इसको एक बार फिर देख लें कि फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट, अब डिसाइड कर लिया कि पॉपुलेशन लिस्ट में से कितने लोगों को लेना है और उसके यूनिट का एक लिस्ट बना लिया. साइज डिसाइड कर लिया कि 500 लेना है. क्योंकि हम लोग शुरू में जब रिलेटेड कंसेप्ट सैंपलिंग को डिफाइन कर रहे थे तो ये सारी बातें कर चुके हैं, तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों के नॉलेज में होगा कि साइज का क्या मतलब है, यूनिट का क्या मतलब है. तो यूनिट सबको मेंशन कर दिया, साइज ऑफ द सैंपल डिसाइड कर लिया कि कितना लेना है, एंड बाय यूजिंग मेथड लॉटरी से, मान लीजिए कि 500 लेना है तो डाल दिया. टोटल पटना के स्टूडेंट को लेना है या पटना डिस्ट्रिक्ट लेना है या पटना सिटी लेना है या पटना शहरी क्षेत्र लेना है या पटना शहरी क्षेत्र का कोई खास इलाका लेना है, बाय कंसीडरिंग द कंस्टिट्यूएंसी एंड लाइक दैट. ये शुरू में ही डिसाइड कर लेगा और तब सारे मेंबर्स को उसमें डाल के लॉटरी सिस्टम से या फिर रैंडम टेबल से, दोनों को फिर अलग अलग एक्सप्लेन भी करेंगे, तो सेलेक्ट कर लेते हैं. मतलब कि पॉपुलेशन में से पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारे सैंपलिंग में शामिल कितने यूनिट्स होंगे और फिर तब अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड करते हैं. तो लॉटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे या रैंडम टेबल का इस्तेमाल करेंगे. इन लॉटरी मेथड बाय नंबरिंग एवरी यूनिट, जैसे मान लीजिए कि 1000 आदमी को या 10,000 आदमी को आपने शामिल किया, तो एक बॉक्स में 10,000 आदमी के लिस्ट डाल के 1 2 3 कोई भी नंबरिंग जैसे भी कर सकते हैं, नाम के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जैसे भी एक आपको एक बना लेना है उसका चीट. सो इन लॉटरी मेथड बाय नंबरिंग एवरी यूनिट एंड मिक्सिंग देम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स आर ड्रन फ्रॉम द बेल मिक्स्ड चीट. मतलब 10,000 में से हमको यदि 500 को निकालना है तो एक बॉक्स में 10,000 लोगों को किसी तरह का कोई एक नंबर देके उसमें डाल देंगे और डालने के बाद फिर लॉटरी से एक निकालेंगे. लेकिन इसमें और भी तरीके हो सकते हैं. कैसे,
लेट अस सी इन रैंडम नंबर टेबल मेथड, दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं, एक तो लॉटरी मेथड, दूसरा द इन रैंडम नंबर टेबल मेथड द टेबल इज प्रिपेयर्ड बाय प्रेजेंटिंग एवरी यूनिट्स इन टेबल रैंडमली। मान लीजिए कि 10,000 को शामिल करना है तो उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यदि हम कहें कि ये हमारा एक ऐसा एक लिस्ट बन गया, इसमें सारे जितने भी 10,000 में से हमको 500 लेना है तो यहां एंट्री सब की करनी होगी। वहां भी हम चीट बना के 10,000 को लोकेट कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, यहां भी शामिल करना होगा। अब शामिल करने में आप नंबर सिस्टम कैसे दीजिएगा, कुछ ना कुछ उसका एक्सरसाइज करना होगा। 1 2 3 दीजिए। किसी इंस्टीट्यूशन से यदि इतने स्टूडेंट हैं तो वो इंस्टीट्यूशन का एक नंबर दे सकते हैं। वो सब आपको डिसाइड कर लेना है। रफ भी आप अपना रख सकते हैं। मतलब यू हैव टू इंटर ऑल दी सेलेक्टेड 10,000 यूनिट्स इफ इट इज, और उसमें से 500 निकालेंगे। कैसे, उसको देखें। इन रैंडम नंबर टेबल, मतलब वो चीट तो अलग हो गया, चीट डाल दिए लॉटरी सिस्टम में, और रैंडम टेबल बना लिए, सारे लोगों को लोकेट कर दिया उसमें, जितने आपके सैंपल के लिए आपने सेलेक्ट किया है। इन रैंडम नंबर टेबल मेथड द टेबल इज प्रिपेयर्ड बाय प्रेजेंटिंग एवरी यूनिट्स इन टेबल रैंडमली। The researcher starts from any point on the table to select required number of sample in any direction, diagonally, vertically or horizontally। मतलब ये टेबल में से कहीं एक नंबर रख के किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ले लिया, या आंख बंद करके आप टिक करके उसको घेर दे, कैसे भी वो आप सब बेहतर समझ सकते हैं। There may be 2 opinions in lottery method। कैसे? Sampling with replacement and sampling without replacement। मतलब क्या हुआ कि जब हम चीट निकालें तो वो चीट तो निकल गया, वो यूज भी हो गया। अब एक तरीका यह है कि उस चीट को उसमें डालें बॉक्स में, दूसरा तरीका है कि उसको बाहर कर दें। इसी को कहा कि सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पर संभव है कुछ डाल दें या नहीं डालें। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस किए या नहीं किए। कैसे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन एन एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन आफ्टर बीइंग selected for further consideration, it is called sampling with replacement। क्या हुआ? When an element of the population is returned to the population after being selected for further consideration, फिर डाल दिया तो इसको क्या नाम दिया? Sampling with replacement। दूसरा है when an element of the population is not returned to the population after being selected for further consideration, it is called sampling without replacement। मतलब विथ रिप्लेसमेंट में क्या करता है कि रिटर्न टू द पॉपुलेशन, जो चीट निकाला उसको एंट्री कर लिया, नाम जो भी नोट करना, जो भी तरीका हो सिलेक्शन का, इसके बाद फिर उसको डाल दिया। दूसरे में क्या किया? उसको नहीं डाला। तो जो डाला उसको सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट कहा, और जिसमें नहीं डाला उसको कहा सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये भी एक तरीके, दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। क्या क्या देख लो। द मेजर डिफरेंस बिटवीन सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज मेनली कंसर्न विद द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज। उसमें एन कॉन्स्टेंट रहेगा जिसमें डाल दिया। ऑब्वियस है, जब उसको निकाल लेंगे तो एन तो घटना शुरू हो जाएगा ना। तो इसके दोनों के फायदे नुकसान हो सकते हैं, इस पे आगे देखें। फॉर सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट द नंबर ऑफ द पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n वुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ऑफ द सेम साइज फॉर सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब n का साइज
ऑब्वियस है, जब डाल देंगे तो वो तो कांस्टेंट रहा, लेकिन जब निकालते चले जाएंगे तो n का साइज तो घटता चला जाएगा ना। सिंपल बात है, सिंपल अर्थमेटिक है। इफ सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट इज यूज्ड द चांस ऑफ सेम केस बीइंग, देखो क्या प्लस है या क्या माइनस है जब देखो, इफ सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट इज यूज्ड the chance of same case being selected more than once is increased, क्योंकि वो फिर दोबारा भी आ सकता है। In such cases the repeated cases may be ignored as being done when the random table is being used for selection of cases। मतलब ये इशारा कर रहा है कि रैंडम टेबल में जो हम लोग रिपीट नहीं करते हैं उस पर उसे उसको इग्नोर करेंगे, दोबारा जो भी आ जाएगा उसको शामिल नहीं करेंगे। ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज एसोसिएटेड विथ वन कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए या इसके स्टेप्स कहिए, जो भी है समझ लीजिए इसको। ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज एसोसिएटेड विथ नंबर वन कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने लोग पॉपुलेशन के रूप में शामिल होंगे उसका एक कंप्लीट लिस्ट होना जरूरी है। इसका मेरिट्स भी है और इसका ये लिमिटेशंस भी है जो बाद में हम लोग देखेंगे। दूसरा, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट, मतलब ये इक्वल चांस देता है सारे यूनिट का सिलेक्शन का, ये इसका दूसरा रिलेटेड एस्पेक्ट है। और तीसरा, नो इफेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट और यूनिट टू अनदर यूनिट, मतलब एक यूनिट के सिलेक्शन का दूसरे यूनिट के सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तीन सिंपल रैंडम से रिलेटेड जो तीन स्टेप्स हैं या तीन एस्पेक्ट्स है वो क्या है कि कंप्लीट लिस्ट चाहिए, दूसरा कि इक्वल चांस है सबके सिलेक्शन का, और तीसरा कि एक यूनिट के सिलेक्शन का दूसरे यूनिट के सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सैंपलिंग टेक्निक को हमने मुख्य रूप से समझ लिया कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट को शामिल करना है, चाहे लॉटरी मेथड की मदद से या फिर रैंडम नंबर टेबल की मदद से, मतलब सारे एलिमेंट का लिस्टिंग करना या चिट बनाना जरूरी है, इसके बिना ये टेक्निक यूज नहीं किया जा सकता है। अब इसके कुछ मेरिट्स की बात कर लें। द सिंपल रैंडम सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कि सारे मेंबर को शामिल करेंगे तो ऑब्वियस है रिप्रेजेंटेटिव होगा। इन दिस सैंपलिंग टेक्निक द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट नीड टू नो द ट्रू कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में उसको जानना नहीं है, चूंकि पॉपुलेशन डिफाइन हो गया और उसमें से सारे यूनिट को इक्वल चांस देके सेलेक्ट करना है। इट इज इजियर एंड सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्लान। एक चीज मैं आपको यहां क्लियरली कह दूं कि जब भी हम सिंपल की बात करेंगे, जब भी हम लोग इकोनॉमी की बात करेंगे, इट इज रिलेटिव, रिलेटिव इन द सेंस कि उसका आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा। इट इज इजियर, क्यों इजियर है? क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, जहां से जो मिले उसको ले लेना है। सो इट इज इजियर एंड सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्लान। इसका नाम भी है सिंपल, इसीलिए रखा है लोगों ने। It serves as a foundation to other types of random sampling as it can be readily applied in conjunction with all other probability sampling techniques। मतलब जितने भी probability sampling techniques हैं उसमें किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं या कर सकते हैं। It serves as a foundation, इसीलिए मतलब ये दूसरे सैम्पलिंग टेक्निक्स में भी इसका इंप्लीकेशन होता है। कैसे हम लोग देखेंगे जब दूसरे सैंपलिंग टेक्निक्स को समझने का प्रयास करें। इन दिस रैंडम सैंपलिंग द सैंपलिंग एरर एसोसिएटेड विथ एनी गिवन सैंपल ड्रॉन कैन इजिली बी असेस्ड, मतलब इसको आप असेस कर सकते हैं। मतलब इस रैंडम सैंपलिंग में सैंपलिंग एरर जो किसी भी चीज से एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ एनी गिवन सैंपल ड्रॉन कैन इजिली बी असेस्ड। क्योंकि इसमें सब डिफाइंड है तो कहां गलती की है, क्यों एरर बढ़ा है, ये सब चीज फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। इन दिस सैंपलिंग टेक्निक द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट कमिट क्लासिफिकेशन एरर एज ही डज नॉट नीड
to know the population characteristics prior to selection of the sample. बहुत सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स है, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, तो जब तक आप दूसरे टेक्निक्स को नहीं जानोगे तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस और रिलेटिव मेरिट्स को जानना थोड़ा कठिन होगा। लेकिन बहुत सारे में हम लोग बहुत फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग स्ट्रेटा में पहले बांटेंगे। तो जब बांटते हैं तो उस बांटने के क्रम में क्लासिफिकेशन एरर हो सकता है, जो इस टेक्निक का मेरिट्स है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियस है कि उस तरह के एरर की कोई संभावना ही नहीं है। इन दिस सैम्पलिंग ईच पर्सन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन दिस सैंपल। रिप्रेजेंटेटिवनेस की बात भी हमने की, उसी की तरफ इशारा कर रहा है। इट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड वेयर पॉपुलेशन इज रिलेटिवली स्मॉल एंड वेयर सैम्पलिंग फ्रेम इज कंप्लीट एंड अप टू डेट। ये इसका मेरिट भी है और इसका लिमिटेशंस भी है, क्योंकि जब बीच का मेंबर गायब होगा, अभी हम इसके लिमिटेशंस में भी देखेंगे, तो फिर सैम्पलिंग टेक्निक नहीं होगा, इनकम्प्लीट लिस्ट में नहीं हो सकता है। फिर यदि इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो तब तो बहुत सारे टेक्निक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सिंपल रैंडम भी नहीं हो सकता है यहाँ। लेकिन हम मेरिट में कह रहे हैं कि इट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड वेयर पॉपुलेशन इज रिलेटिवली स्मॉल। स्मॉल पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छा है और सैम्पलिंग फ्रेम पूरा दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है या अप टू डेट है, तो ये बहुत यूजफुल मेथड है। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस की बात करें और लिमिटेशंस के साथ ही हम इस लेक्चर को कंप्लीट मान के आगे बढ़ेंगे दूसरे लेक्चर की तरफ। सो लिमिटेशंस ऑफ सैंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या क्या है? इट डज नॉट गारंटी दैट एलिमेंट्स स्मॉल इन नंबर्स इन पॉपुलेशन में बी इंक्लूडेड। क्योंकि इसमें कोई चॉइस हम लोग नहीं देते हैं, डेलिबरेटली वैसी चीजों को डालने का प्रयास नहीं करते हैं जिनकी संख्या किसी, मान लो कि हम जैसे हमको ट्राइबल पॉपुलेशन चाहिए, लेकिन हम ट्राइबल को तो अलग से रखे नहीं है, सब इक्वल चांस है सबके सिलेक्शन का, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वैसे कंडीशन में इस सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और या वैसे कंडीशन के लिए इट इज नॉट सो सुटेबल मेथड। सो इट डज नॉट गारंटी दैट एलिमेंट्स स्मॉल in numbers in population may be included. In this sampling technique, trait X may not be selected. क्योंकि यहाँ तो सबको इक्वल चांस है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है, X की तरफ हमने इशारा किया, हमने अभी ट्राइबल का भी एग्जाम्पल दिया, या फिर कहीं महिला कम है, जैसे पुराने जमाना था मैथमेटिक्स पढ़ने वाले लड़कियां कम होती थी, तो मैथमेटिक्स में स्टडी करने में यदि लड़कियों को शामिल करना है तो इसकी इजाजत ये मेथड नहीं देती है, ये इसका लिमिटेशन है। इट डज नॉट फोकस ऑन सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी उसी तरफ इशारा है। स्ट्रेटा मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए, रूरल भी चाहिए, अर्बन भी चाहिए, इसकी तरफ कोई इसके लिए एक्सरसाइज नहीं करता। सो इट डज नॉट फोकस ऑन सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, डज नॉट प्लान फॉर स्ट्रेटा। इन्वेस्टिगेटर नोज proportion of person belonging to a category but does not utilize this knowledge। मतलब मान लीजिए कम अधिक है तो एडजस्ट करने का स्कोप दूसरे जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है इसमें है ही नहीं, चूंकि सबका इक्वल चांस है, तो ये इसका लिमिटेशंस भी है। इसीलिए हमने कहा कि मेरिट्स एंड लिमिटेशंस जब भी आप डिस्कस कर रहे हैं इट इज ऑलवेज रिलेटिव। सैम्पलिंग एरर ऑफ ए सैंपल साइज n इज ग्रेटर as compared to the sampling error in the case of stratified random sampling of the same size, as the heterogeneity in the case of simple random sampling is greater than the same in case of a stratified random sampling। कहे ना कि ये रिलेटिव है, मतलब ये स्ट्रेटा में हम लोग हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि जितने भी तरह के लोगों को हम शामिल कर रहे हैं सब उसमें हो जाए, मतलब हेट्रोजीनिटी। लेकिन यहां तो बहुत सारी चीजों को कंसीडर ही नहीं करते हैं, सिंप्लिसिटी है इसकी, तो उसकी वजह से इसके कुछ लिमिटेशंस भी हो जाते हैं, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हो जाते हैं, जिसकी तरफ हमने इशारा किया कि सैम्पलिंग एरर ऑफ ए सैंपल साइज n इज ग्रेटर, मतलब सैम्पलिंग एरर बढ़ जाता है कब, एज कंपेयर टू द सैम्पलिंग एरर इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द सेम साइज, एज द हेट्रोजीनिटी in the case of simple random sampling is greater than the same in case of a stratified random sampling। मतलब सैम्पलिंग एरर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो
उसके डिफरेंट स्ट्रेटा है उसको हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में कंसीडर करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। इसलिए हमने कहा कि इसको मेरिट्स एंड लिमिटेशंस इज ऑलवेज रिलेटिव, एंड एट द एंड लिमिटेशंस ऑफ द सैंपल रैंडम सैंपलिंग में हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द सेलेक्टेड सैंपल रैंडम sample may not truly represent the population characteristics homogeneous। वैसे भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स जो भी है उसके बारे में यही कहा जाता है कि उसके लिए पॉपुलेशन का होमोजीनियस होना जरूरी है, मतलब एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो तभी। लेकिन ये कह रहा है दूसरे सैंपलिंग टेक्निक्स जो एक तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक की तुलना में ये लिमिटेशंस है ही कि हेट्रोजीनिटी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे जो सैंपलिंग टेक्निक्स है जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, जैसे अभी हमने स्ट्रेटिफाइड का नाम लिया, आगे कुछ और सैंपलिंग टेक्निक का नाम लेंगे, तो उसकी तुलना में चूंकि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जब होगा तो ये और खराब रिजल्ट देगा, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। सो इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द सेलेक्टेड सैंपल रैंडम sample may not truly represent the population characteristics, and the last limitation we have taken, that is large sample size is required to establish the reliability of the sample, which is difficult to manage in this technique, as it is more suitable when population and subsequently sample is relatively small। मतलब यदि बहुत बड़ा है तो ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तुलना में तो कठिनाई होगी ही, लेकिन जो दूसरे टेक्निक्स है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के, उसकी तुलना में भी ये जब साइज थोड़ा बड़ा होगा। अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी देखो ना, 10,000 आदमी को लिखना है, यदि 1 लाख हो जाए तो ये हम कैसे चिट में डालेंगे, फिर कैसे ये देखेंगे, तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी बढ़ेगी। बहुत सारी चीजों को आप समझ के अपने मेरिट्स एंड लिमिटेशंस लिख सकते हैं। So in this way we have completed the simple random sampling. As its name suggests, it is simple, and usually in the process of simple random sampling we use lottery method or random number table। और इसका मेरिट ये है कि सारे लोग उसमें एलिमेंट का यूनिट का अपीयर होना जरूरी है, और यही इसका लिमिटेशंस भी है कि 2, 4, 10 यूनिट भी छूटे हुए हैं यदि मिसिंग है टेबल में या मिसिंग है चिट में, इसका मतलब है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। थैंक यू वेरी मच।